سارے بھائیوں بہنوں اور بلیوں کو میرا السلام علیکم۔ ہدایت کے لیے فیلنگز کو سائڈ میں کریں اور اسلام کو آگے۔ کچھ ڈیز پہلے میری نظر ایک ویڈیو پہ پڑی، اس میں ایک شخص ہے پاکستان کے جن کا نام سید مزمل ہے۔ یہ ایک جرنلسٹ اور ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے۔ میں نے ان کی کچھ ویڈیوز دیکھی اور مجھے لگا ان کو اسلام سے پرابلم ہے اور ان کو سیکولرزم سے بہت پیار ہے۔ باقی ویڈیوز کی بات پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن آج ہم بات کریں گے ان کی ریپ سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے بارے میں۔ ایک ویڈیو میں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی لوگ ریپ وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں کیونکہ وہ ویمن کو کہتے ہیں کہ اموڈسٹ کپڑے نہ پہنے۔ پھر یہ اسی ویڈیو میں ان سب لوگوں کو جاہل بھی بولتے ہیں۔ دوسری ویڈیو میں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ریپس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ویسے یہ کسی بھی آئیڈیالوجی کے سخت خلاف ہے اگر وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہو، لیکن خود یہ اپنی سیکولر آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنا نہیں بھولتے۔ خیر، پہلے بات کرتے ہیں ان کی وکٹم بلیمنگ والی ویڈیو پہ۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈریس کا ریپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو لوگ ویمن کو کہتے ہیں کہ وہ ڈیسنٹ کپڑے لگائے وہ جاہل اور بیمار ذہن والے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لڑکی کا رات کو کہیں اکیلے جانے کا بھی ریپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ گن پوائنٹ پہ تو آدمی اپنی موبائل تک نہیں بچا سکتا، تو ایک عورت کے ساتھ رہ کر اس کی عزت کیسے بچا سکتا ہے۔ ان کو شاید نہیں پتا کہ کامن سینس کہتی ہے کہ اگر آپ کو ڈر ہو کہ آپ کے گھر چوری ہو سکتی ہے تو آپ گھر لاک کر کے جاتے ہیں، نہ کہ کھلا رکھ کے اور پھر سوشل میڈیا یا لیکچر ہالز میں کہتے ہیں کہ چوروں کو چوری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر کوئی گھر کو بنا لاک کیے نکلے اور پھر چوری ہو وہاں، تو سب سے پہلے یہی کہا جائے گا کہ بھائی گھر لاک کرنا تھا، اور یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے گھر کی سیفٹی کی ریسپانسبلٹی بھی پوری کرنی تھی۔ چور تو کرمنل ہے ہی، اس کو نہیں کوئی بول رہا کہ وہ کرمنل نہیں ہے، لیکن آپ اس بھروسے نہیں بیٹھ سکتے کہ سارے چور اچانک سے سدھر جائیں گے، کیونکہ آپ کی ایروگنس یہ ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتی آپ کو کہ اپنے گھر کی سیفٹی کے لیے آپ پر بھی کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں۔ اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور اس کو بھی ایڈکشن ہو جاتی ہے، تو کیا یہ وکٹم بلیمنگ ہوگی اگر کوئی کہے کہ اس کو ان ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی تھی؟ اگر آپ ننگے پاؤں چلتے ہیں اور آپ کے پیر میں کانٹا یا پتھر گھس جاتا ہے، کیا یہ وکٹم بلیمنگ ہوگی کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ پیروں میں جوتا یا چپل پہن کے جانا تھا؟ اگر ایگزام میں پڑھ کر نہیں جاتے ہیں آپ اور آپ فیل ہو جاتے ہیں، اور آپ سے کوئی کہے کہ آپ کو ایگزام کے لیے پڑھ کے جانا تھا، کیا یہ وکٹم بلیمنگ ہوگی؟ اگر کوئی ریکلیس ڈرائیونگ کرتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو کیا یہ وکٹم بلیمنگ ہوگی اگر کوئی کہے کہ اسے ریکلیس ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اگر یہ سب وکٹم بلیمنگ نہیں ہے، تو عورت کو بولنا کہ وہ اپنی سیفٹی کے لیے ریسپانسبلٹی پوری کرے اپنی، تو وہ کیوں وکٹم بلیمنگ ہے؟ عورتوں کی فیلنگز کی اتنی پڑی ہے کہ ان کو سچ نہیں بتا سکتے، یا پھر عورتوں کو امپریس کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ ریپسٹ کو سدھارو، نہ کہ عورتوں کو بولو کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے بینک یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی ڈیٹیل پبلک کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کے فون پہ اسکرین لاک کیوں لگا ہے؟ آپ کی کار میں تھیفٹ الارم کیوں ہے؟ آپ کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے پیسے چھپا کے کیوں رکھتے ہو؟ گھر یا شاپ میں سیکورٹی کیمراز کیوں لگائے ہیں؟ ان چیزوں میں کیوں نہیں کہتے کہ مجھے مت بولو کہ سیفٹی کے لیے سٹیپس لو، بس چوروں کو بولو کہ چوری نہ کریں؟ اس لیے کہ ریپ اتنے نہیں ہوتے جتنے چوریاں ہوتی ہیں؟ یا پھر یہ کہ آپ کو لگتا ہے آپ کے یہاں چوری ہو سکتی ہے لیکن ریپ نہیں ہو سکتا؟ یا پھر اس لیے کہ عورت کی عزت آپ کی کار یا فون سے سستی ہے؟ یا پھر اس لیے کہ ریپ وکٹمز کو اپنے فیک ایکٹیویزم یا انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہو؟ ریپ نہیں ہوں گے تو آپ کا بزنس کیسے چلے گا؟ ہاں، آئیڈیل ورلڈ میں چوری نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی میں جیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اور اسی لیے وہ اپنی پراپرٹی کی سیفٹی کے لیے سٹیپس لیتے ہیں۔ ٹھیک ایسے ہی اپنی عزت اور اپنی لائف کے لیے بھی۔ گن پوائنٹ پہ تو آپ کے گھر بھی چوری ہو سکتی ہے، پھر کیوں واچ مین یا CCTV کیمرہ یا کتے رکھے ہیں؟ ویسے گن رکھنا ایک الگ سے کرائم ہو سکتا ہے، اس کو الگ سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ اگر کہیں گن پوائنٹ پہ ریپ ہوتا ہے تو آپ بس یہ مان کے چلو کہ سیفٹی سٹیپس نہیں لینے۔ اب سارے ریپس گن پوائنٹ پہ نہیں ہوتے، اور اکثر ریپس تب ہوتے ہیں جب عورت اپنے جاننے والے جیسے کہ میل فرینڈز کے ساتھ اکیلے ہوتی ہے۔ یہ کون سا لاجک ہے کہ اگر کسی کا گن پوائنٹ پہ ریپ ہوتا ہے تو باقی عورتوں کو اپنے ساتھ مرد لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اب تو زیادہ ضروری ہے کہ تم یا تو گھر پہ بیٹھو یا خود بھی گن یا کچھ اور رکھو اور اپنی سیفٹی کی پلاننگ کرو، لیکن نہیں اپنی ایروگنس اور لبرل فیلتھ کو جسٹیفائی کرنا ہی ہے، چاہے ماں یا بہن کی عزت ہی لٹ جائے اس کے لیے۔ اگر مزمل نے تھوڑی بھی سائنٹیفک سٹڈیز پڑھی ہوتی تو شاید یہ جاہلوں والی باتیں نہ کرتے اور باقیوں کو جاہل نہ کہتے۔ سٹڈیز کہتی ہیں کہ عورت کے انڈیسنٹ کپڑوں اور ہراسمنٹ میں لنک ہے۔ سٹڈیز یہ بھی کہتی ہے کہ جس طرح عورتیں میڈیا جیسے کہ موویز، سانگز، میگزینز یا پورن وغیرہ میں دکھائی جاتی ہیں، یا سوشل میڈیا پہ عورتیں خود کو پریزنٹ کرتی ہیں، ان سے عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے، اور اس کا اثر باقی عورتوں پہ بھی پڑتا ہے، کیونکہ عورت کی امیج ہی ایز سیکس آبجیکٹ بنائی گئی ہے۔ لیکن لبرلز یہ بات نہیں کہیں گے، کیونکہ لبرلزم نے ہی ویمن کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے سیکشول لبریشن کے سلوگنز دیے تھے ویسٹ میں، اور ویمن کو بولا تھا کہ ماڈسٹی تو پیٹریارکی ہے۔ انہوں نے ان کو کہا اپنا جسم فریلی سیکشول فریڈم کے لیے یوز کرو، اور آج حالت یہ ہے کہ ویمن ایک سیکس آبجیکٹ بن گئی ہے۔ جو جینولی سولوشن چاہتا ہے نا، وہ پرابلم کی روٹ تک جاتا ہے۔ یہ لوگ بس فیک ایکٹیویزم کرتے ہیں، جو کہ ان کے لیے یا تو بس انٹرٹینمنٹ ہے یا پھر ایک بزنس۔
मुज़म्मिल हमें एक और वीडियो में बताता है कि रेप्स या सेक्सुअल हैरेसमेंट्स को कैसे रोक सकते हैं हम। इनका कहना है कि रेप्स को सज़ा देने से रेप्स नहीं रुकेंगे, और ये बात सही है इनकी। इनका कहना है कि रेप की वजह है मर्द और औरतों को दूर रखना, यानी जो इस्लाम कहता है कि गैर महरम मर्द और औरत आपस में फ्री मिक्सिंग ना करें। इनका कहना है कि मर्द में फ्रस्ट्रेशन आती है, शायद ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, और फिर मर्द रेप करता है। मुज़म्मिल का कहना है कि सोल्यूशन यही है कि मैन और वुमेन का आपस में मिलना जुलना नॉर्मलाइज करना रेप को रोक सकता है। ये बात तो एक बेवकूफ़ी कर सकता है। अगर आपको भूख लगी है तो खाने के साथ बैठने से आपकी भूख खत्म होगी या और बढ़ेगी। मुज़म्मिल शायद ये नहीं जानता कि अक्सर वुमेन का रेप उनका जानने वाला जैसे कि फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स या कोलीग्स ही करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि मुज़म्मिल यहाँ ये कहना चाहता है कि ज़िना को आम करो, क्योंकि भूख तो तभी मिटेगी अगर आपको खाना मिले, ना कि सिर्फ खाने के सामने बिठा के रखा जाए। यही लॉजिक मैंने कुछ और देसी फूल्स को यूज करते हुए देखा है कि अगर प्रोस्टिट्यूशन आम किया जाए तो रेप्स कम होंगे। लेकिन मुझे पता है ये आइडिया इनको कहाँ से मिला है, वेस्ट के लिबरल्स से जो इस्लाम के खिलाफ है और मुस्लिम्स में बेहयाई फैलाना चाहते हैं। और मैं जानता हूँ कि देसी लोअर कैस्ट लिबरल्स अपना दिमाग यूज नहीं करते, ये वो रिपीट करते हैं जो वेस्ट के लिबरल्स कहते हैं। खैर, इनका ये भी कहना है कि सेक्स एजुकेशन भी रेप को रोक सकती है, ये भी इन्होंने वेस्ट से लिया है। मुज़म्मिल खुद को इंटेलेक्चुअल समझता है, लेकिन सच्चाई यही है कि एक पैरट है जो बस वही बोल रहा है जो इसने वेस्ट के लिबरल से सुना है। इसको नहीं पता कि ये बोल क्या रहा है। जो मुज़म्मिल ने हमें रेप का रीजन दिया है कि मेन और वुमेन का फ्री मिक्स ना होना, और रेप को रोकने के लिए जो सोल्यूशन बताया सेक्स एजुकेशन और मेन और वुमेन का आपस में फ्रीली मिक्स होना, उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा रेप सऊदी या मुस्लिम कंट्रीज में होने चाहिए थे और यूएस या वेस्ट में सबसे कम। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज में जहां इस्लाम स्ट्रिक्टली फॉलो होता है वहां बहुत कम रेप्स या बिल्कुल ही नहीं होते हैं, जबकि वहां मेन और वुमेन आपस में फ्री मिक्स ज्यादा नहीं होते। वेस्ट में क्यों रेप्स हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जबकि वहां बचपन से ही लोग जिना करना स्टार्ट करते हैं और मरते दम तक करते रहते हैं। वहां तो मेन और वुमेन एक साथ नंगे होके भी पार्टीज करते हैं। वहां तो जिना इजीली अवेलेबल है, हर कोने में प्रोस्टिट्यूट मिल जाती है। मुज़म्मिल के हिसाब से वहां 0 रेप्स होने चाहिए थे, फिर क्यों नहीं है? वेस्ट की मिलिट्री में भी रेप्स या सेक्सुअल असॉल्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आर्मी तो बहुत डिसिप्लिन मानी जाती है और इनको सेक्स एजुकेशन भी दी जाती है कि फीमेल आर्मी मेंबर्स का रेप ना करें। फिर भी वेस्ट खास करके अमेरिका क्यों नहीं रोक पा रहा है रेप्स को? कोई बेवकूफी होगा जो समझता है कि एजुकेशन से रेप्स रुक जाएंगे। कभी किसी को सुना है कहते हुए कि एजुकेशन से बाकी क्राइम्स जैसे कि मर्डर्स, चोरियां खत्म होंगी? वेस्ट में भी ये बात नहीं की आज तक शायद किसी ने। किसी ने कहा 2050 तक मर्डर्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि हम लोगों को एजुकेट करेंगे, क्योंकि ये फूलिशनेस है। यहाँ तो अपने पेरेंट्स या अपने बच्चों तक को मार देते हैं लोग। क्या उनको नहीं पता कि अपनों को मारना गलत है? अगर एजुकेशन रेप का सोल्यूशन होता तो शायद बाकी कोई क्राइम नहीं होता कहीं पे। फिर एजुकेशन से आप ये बता सकते हैं कि ये या वो ठीक नहीं है, क्राइम रुक नहीं जाता, क्योंकि हर कोई कहने से नहीं मानता है। और वो जाहिल है जो कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन दो स्कूल्स या कॉलेजेस में। ये बस हमारी यूथ को बर्बाद करना चाहते हैं। अल्लाह की कसम ये इब्लिस के एजेंट्स हैं। वेस्ट की सेक्स एजुकेशन है क्या? ये कि जिना करना ठीक है और कैसे करें, बस कॉन्डोम या पिल्स का यूज करना है जिना करते वक्त, प्रेग्नेंट नहीं होना है और बीमारियों जैसे कि एड्स से बचना है। ये एजुकेशन ये है कि आप अपनी बेटी को लड़कों में रख रहे हो और उसको बताते हो कि बेटी अगर तुम्हारे साथ ऐसा या वैसा हो तो जान लेना तुम्हारा रेप हो रहा है। या ये कि आप अपने बेटे को औरतों के साथ रख रहे हो और उसे कहते हो कि बेटा अगर तुम्हें किसी लड़की से जिना करने का दिल करे लेकिन वो ना कहे तो तुम कुछ मत करना वरना ये रेप माना जाएगा। लेकिन अगर इनसे बेटी पूछे पापा मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल क्यों रहे हो जहाँ पे मेरा रेप हो सकता है, या बेटा पूछे पापा मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल क्यों रहे हो जहाँ पे मुझसे रेप हो सकता है, तो ये यही कहेंगे कि मुस्लिम के जैसे जाहिलों वाली बातें मत करो, हमें इस्लाम के हिसाब से नहीं चलना है, तुम्हारा रेप हो या करो हमें बस इस्लाम के जैसे नहीं चलना है। कितना भरोसा है एजुकेशन वाले सोल्यूशन पे? चलो 5,000 लोगों को ऐसे ही एजुकेट करो चोरी करना गलत है, और फिर उन हजारों को मौका दो कि वो तुम्हारा 1 लाख से भरा हुआ वॉलेट चोरी करें या ना करें। देखते हैं कितना भरोसा है अपनी एजुकेशन वाले सोल्यूशन पे कि ये रेप को रोक सकता है। नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ये काम नहीं करेगा। एजुकेशन ने पूरी दुनिया में सोसाइटी का एक भी बड़ा इशू सॉल्व नहीं किया है आज तक, कहीं पे, कहीं भी नहीं। सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। मुज़म्मिल एक और बात भी कहता है कि बच्चों का भी रेप हो रहा है तो कपड़ों का उनसे क्या लेना देना। तो बच्चों या जानवरों का रेप इसलिए हो रहा है क्योंकि सोसाइटी हाइपर सेक्सुअलाइज्ड है, हर तरफ सेक्सुअल मटेरियल है, और ये आपके लिबरलिज्म की ही देन है। जब ब्रेन करप्टेड हो और इसमें सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट ही भरा जा रहा हो मीडिया या सोशल मीडिया से, तो फिर अपनी माँ का भी रेप कर सकता है एक आदमी। अब इस्लाम के हिसाब से बात करते हैं। पहले तो इस्लाम कहता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी से बचना बीमारी को ठीक करने से बेहतर है। इस्लाम इंसान के नेचर को समझता है और उसके हिसाब से लाज देता है। इस्लाम सजा से पहले गुनाह रोकने के लिए हमें लाज देता है। इस्लाम रेप्स को सख्त सजा तो देता है, लेकिन वो ये भी मानता है कि इंसान का नेचर कैसा है। पहले वो रेप और जिना के रास्ते बंद करता है, जैसे कि अकेले घर से ना निकलो, या फिर ना महरम के साथ फ्री मिक्स ना हो, गंदी वीडियोज या पिक्चर्स ना बनाओ और ना देखो। ये सोसाइटी में जिना या रेप के लिए पहले दरवाजे बंद करता है, और फिर अगर कोई तब भी ये करे और साबित हो
तो फिर सजा देता है। दूसरी चीज इससे इस्लाम रेप या जिना को रोक पाता है वो है अल्लाह पर यकीन और अल्लाह का खौफ। जिसको यकीन हो कि अल्लाह उसको देख रहा है और अल्लाह से डरता हो, वो कभी भी जानकर रेप या जिना के पास नहीं जाएगा, चाहे उसको पकड़े जाने का या गवर्नमेंट की सजा का डर हो या ना हो। ये सिर्फ इस्लाम ही कर सकता है, लिबरलिज्म या सेकुलरिज्म नहीं। लेकिन लिबरलिज्म गुनाह और क्राइम के सारे रास्ते ओपन रखता है और फिर सजा भी देता है। जैसे कि शराब को अलाउड करता है लेकिन फिर एक्सपेक्ट करता है कि पीने वाला रेप या मर्डर नहीं करेगा या पी के गाड़ी नहीं चलाएगा, और अगर कोई पी के रेप करे या गाड़ी चलाए तो उसे सजा देता है। लेकिन मुजम्मिल जैसे देसी लोअर कैस्ट लिबरल्स की एरोगेंस इतनी है कि वो इस्लाम जो कहता है उसको नहीं मानेंगे, भले ही हजारों औरतों का रेप हो। इस्लाम से इनके दिल जलते हैं। तो हमारे पास प्रूफ है कि लिबरलिज्म या सेकुलरिज्म रेप या जिना नहीं रोक सकता बल्कि और बढ़ाता है। और हमारे पास प्रूफ है कि इस्लामिक शरिया रेप और जिना को तकरीबन जड़ से खत्म कर देता है। एक और चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि सेकुलरिज्म या लिबरलिज्म में मोरालिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, यानी गलत और सही का फर्क नहीं है। ये तो रिलीजन है जो गलत और सही बताता है। सेकुलरिज्म या लिबरलिज्म में बस लीगल या इलीगल होता है। मतलब अगर आप पुलिस वगैरह से बच सकते हो तो इलीगल काम करना भी ओके है, और यही होता है हर एक क्राइम में। क्रिमिनल या रेपिस्ट यही सोचता है कि मैं रेप करके बच जाऊंगा तो ये तो ओके है। और लिबरलिज्म चीजों को नफा और नुकसान के हिसाब से देखता है, ना कि गुनाह और नेकी के हिसाब से। ये मटेरियलिज्म बेस्ड है। अगर तुम्हें लगता है कि किसी को मार के तुम्हें खुद को कोई फायदा हो सकता है तो ये ओके है, बस पुलिस वगैरह के हाथ मत लगना। जो भी सोसाइटी में गलत और सही का कंसेप्ट है कहीं, वो रिलीजन्स की वजह से है। सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म या ह्यूमैनिज्म में सही गलत कुछ नहीं होता, बस वही होता है तुम्हें खुद को क्या अच्छा लगता है या फायदा किससे मिलता है। ये सारे लिबरल्स, चाहे देसी लोअर कैस्ट लिबरल्स हों या गोरे लिबरल्स, आपको ये नहीं बता सकते कि रेप गलत क्यों है, क्योंकि मोरालिटी लिबरलिज्म या सेकुलरिज्म से नहीं आती। अगर इस्लाम की मोरालिटी सोसाइटी से निकाल दो तो फिर आपकी सोसाइटी जंगल जैसी बन जाती है, जहां गुनाह या नेकी कुछ नहीं होता, बस खुद का फायदा होता है। लिबरलिज्म हमें बस जानवर बना के रखता है। इसीलिए आप देखेंगे कि वेस्ट के सेकुलर्स और लिबरल्स आज बेटे का माँ के साथ जिना, भाई का बहन के साथ जिना, जानवरों के साथ रेप और यहाँ तक कि मुर्दा इंसान के साथ जिना को भी ठीक मानते हैं, क्योंकि इनकी कोई मोरालिटी नहीं है। मुजम्मिल और इनके जैसे बाकी देसी लोअर कैस्ट लिबरल्स इसी गंदगी को पाकिस्तान और मुसलमानों में आम करना चाहते हैं। मैं इन सबको चैलेंज करता हूँ कि रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट अगले 50 सालों में या फिर 50,000 सालों में 50% भी कम करके दिखाओ अपने लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म को यूज करके। मैं तो ये भी चैलेंज करता हूँ इनको कि बिना रिलीजियस मोरालिटी बेस बनाए हुए साबित करो कि रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट गलत है। वेस्ट की जो गोली हमें यहाँ बेचना चाहते हो उसने तो वेस्ट में भी काम नहीं किया, तो यहाँ कैसे करेगी। हमें अपनी तरह काफिरों का जहनी गुलाम समझा है कि वो जो कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। हम काफिर नहीं है, मुस्लिम हैं। हम इस्लाम पे चलते हैं, ना कि इस्लाम के दुश्मनों के हिसाब से। तुम्हें क्या लगता है कि हमें वेस्ट की वाइट स्किन या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या टेक्नोलॉजी के खिलौने देख के तुम्हारी तरह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? इस्लाम से और ह्यूमन नेचर या बायोलॉजी से लड़ना छोड़ दो, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है और बर्बादी है। जब इंसान की लाइफ या सोसाइटी से इस्लाम या अल्लाह का कंसेप्ट निकल जाता है तब जानवर से भी बदतर बन जाता है इंसान, और फिर रेप जैसी चीजें कोई बड़ी बात नहीं रहती है। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और पेट्स के साथ शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।